Hello students, this is the lecture 26 based on your 4th unit for the subject VLSI design. So in this lecture we are going to discuss about the basic principle of the pass transistor logic. Okay, कि पास ट्रांजिस्टर लॉजिक होते क्या है, सर्किट्स होते क्या है एंड उनकी जो ऑपरेशन है ओके वो कैसे परफॉर्म होता है. So starting with the pass transistor circuits. So basically this is the your basic building blocks for the pass transistor circuit. Okay. So in this circuit we are using this MP NMOS transistor and this is known as the pass transistor circuit, pass transistor. Okay. So and this pass transistor circuit is driving another NMOS. Okay, I have attached only NMOS transistor, but maybe possible here another circuit is available. Maybe here inverter is connected. As you seen in last lecture, we have connected over here two inverters. Okay, same circuit, and that was connected like this way. Okay, so in previous lecture we have seen this diagram for D flip flop. Okay, but in this lecture we are talking about your only yeah, basic building blocks only. We will talk about this transistor only. Okay, इसके फर्दर क्या अटैच है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. Okay, so you are giving clock at the gate. Okay, and you are giving V input here. Okay, at the drain. Okay, and here one node capacitor is connected. You can call this, why I am calling, because we are taking calculation at this point. Okay, for Vx. Okay, that's why I am taking the reference as a node capacitance, but sometime it is written like CL, load capacitance. Okay, so if we talk about this circuit, there will be two condition. Okay, first condition, when the clock is 1. Okay, इस clock की वैल्यू क्या है, अगर मैं बनाऊँ कुछ ऐसे. So when the clock is 1, when the clock is 0. Okay, so two condition is available over there. Also here two condition is available when the Vin is 0 and logic 0 and Vin is logic 1. So whenever I am talking about the 0 means I am talking about the 0 volt. Whenever I am talking about the 1 logic 1 means I am talking about the 5 volt. Okay. Okay, so further moving in this slide. Okay, all the two possible things which we can give this pass transistor circuit, whether you are giving logic 0 and whether you are giving logic 1. Okay, so now suppose what will happen when you give the logic clock is 1. Okay, अगर क्लॉक 1 होगी तो क्या होगा, दिस इज एन टाइप NMOS. सो NMOS ऑपरेट कब करेगा, वेन एवर यू विल गेट लॉजिक 1. सो व्हेन द क्लॉक इज एक्टिव, एक्टिव इज लॉजिक 1. ओके, लॉजिक 1 होगा और यू कैन से क्लॉक एक्टिव होगी तो ये हमारा ऑन होगा. अब डिपेंड करेगा, पहली कंडीशन तो इसे ऑन और ऑफ है. Okay, so suppose this is on. Now depending upon the value of Vn, okay, ये कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा या चार्ज हमारा डिस्चार्ज होगा, दो ही कंडीशन हो सकती है. ओके, व्हेन द क्लॉक इज 0 मतलब क्लॉक डीएक्टिवेट कर दिया आपने,
डीएक्टिवेट कर दी मीन्स ये काम आपका नहीं करेगा, ये एक तरह से ऑफ हो गया। ओके, सो ना ही कैपेसिटर की चार्जिंग होगी उस केस में और ना ही उसकी डिस्चार्जिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, और यहाँ भी इस साइड भी आप देख रहे हो एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, सो डायरेक्टली देयर इज़ नो पाथ फॉर ग्राउंड और वीडीडी। ओके, सो ये कैपेसिटर जो भी अगर जो वैल्यू रहे पिछले उस साइकिल में रही होगी वही रहेगी। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आई हैव रिटन, द पास ट्रांजिस्टर एमपी इज ड्रिवन बाय द पीरियोडिक क्लॉक। ओके, जो हम गेट पे, दिस इज योर गेट जहाँ पे हम क्लॉक दे रहे हैं। ओके, एंड एक्ट एज एन एक्सेस स्विच टू आइदर चार्ज अप or charge down the parasitic capacitance Cx depending on the input signal। यही मैंने आपको बताया। ओके, कि क्लॉक एक्टिव डीएक्टिवेट होगी, उस बेसिस पे क्या करेगा, ये आपका चार्जर है वो या तो चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। ओके, सो अगर चार्जर जो कैपेसिटर है इसको मैं चार्ज करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये आपका ऑन होना चाहिए। ओके, दैट शुड बी ऑन, तभी ये कैपेसिटर चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा बेस्ड ऑन दी योर वी इन वैल्यू। अगर ये क्लॉक डीएक्टिवेट है मतलब ये ऑफ है तो ना ही चार्ज जो आपका कैपेसिटर लगा वो चार्ज होगा और ना ही वो डिस्चार्ज होगा। सो सेम थिंग आई हैव मेंशन इन पॉइंट 1। पॉइंट 2, thus two possible operation when the clock signal is active। okay, means active means ck equal to 1। okay, are the logic 1 transfer or logic 0 transfer। when the clock is active तो वीन की वैल्यू अगर क्लॉक एक्टिव है तो वीन या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। सो सपोज यू आर गिविंग लॉजिक 1, उस केस में क्या होगा, आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। सो चार्जिंग अप द कैपेसिटेंस Cx टू अ लॉजिक हाई लेवल, when this is 0 charging down the capacitance Cx to logic low level। okay, in next slide I mention for logic 1 transfer when whatever I am talking about is the logic 1 and logic 0। okay, so I have, this is our main बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इसी को हमने नेक्स्ट स्लाइड में सेपरेट कर दिया। ओके, सो सेम सर्किट है, यहाँ पे हमने क्या नहीं, जो ड्राइवर एक लगा था जो फर्दर एक एनमोस को ड्राइव कर रहा था वो हमने नहीं लगाया, कि ओके, बिकॉज हमें उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। सो हम मान के चल रहे हैं क्लॉक इज एक्टिव एंड फर्स्ट कंडीशन व्हेन द वी इन इज योर लॉजिक 1। लॉजिक 1 मतलब वी आउटपुट हाई। ओके, एंड वी आउटपुट हाई मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, VDD। ओके, मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेते हैं, 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट VDD जनरली मेनली सभी में हम क्या देते हैं, 5। So V in is equal to V output high and that value is equivalent to VDD। okay, same in this case when we I am talking about the clock high। so clock high का मतलब क्या है, maximum value voltage की, इसका जो level होगा that will be also VDD। VDD और 0 लॉजिक, अगर क्लॉक डीएक्टिवेट है मीन्स लॉजिक 0 है, मतलब 0 वोल्ट जा रहा है। क्लॉक व्हेन क्लॉक इज़ हाई, क्लॉक इज़ एक्टिव मीन्स वहाँ पे वैल्यू क्या जा रही है, VDD। ओके, सो होगा क्या, क्लॉक इज़ एक्टिव, इनपुट पे वैल्यू हम क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, सॉरी जो ड्रेन पे हम वोल्टेज दे रहे हैं वी इन, वो हमारा VOH, गेट पे जो हम क्लॉक दे रहे हैं वो एक्टिव हाई है। सो इन दिस केस क्या होगा, ओके, जैसे ही ये ऑन होगा इसे पाथ मिल जाएगा करंट को। सो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में, मीन्स ये कैपेसिटर क्या होगा, स्टार्ट चार्जिंग। ओके,
और इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सारा ऑपरेशन किस पे देखना है, इस कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ओके, so this is the case when you are giving the logic 1. Okay, now in second figure you can see a graph between the Vx means जो यहाँ पे नोड वोल्टेज है x, there is x नोड, उस x नोड के रिस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज है Vx उसके एंड टाइम के रिस्पेक्ट में देयर इज़ वन ग्राफ। ओके, सो पॉइंट इज कि जैसे ही ये इनपुट हाई होगा, ज़ीरो इनिशियली ज़ीरो है, ज़ीरो से कहाँ जा रहा है VDD, क्योंकि इनपुट आप 1 ले रहे हो, तो ये क्या करेगा, इट स्टार्ट चार्जिंग। सो चार्जिंग कहाँ से होगी, कैपेसिटर की। सो इन दिस फिगर यू कैन सी दिस जो वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो क्या होगा, इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। चार्जिंग इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वोल्टेज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितना है VDD। सो होना क्या चाहिए VDD। सो इट स्टार्ट फ्रॉम 0 वोल्ट टूवर्ड्स टू मैक्सिमम। ओके, बट हियर यू कैन सी Vmax इक्वल टू नॉट VDD minus VTN, where VTN is a threshold voltage of this NMOS transistor. Okay, so why this, because जैसे ये वैल्यू 0 से अब for this MP क्या होगा, अगर हमारा वोल्टेज जब 0 से 1 की तरफ जा रहा है, 0 to 5 वोल्ट जा रहा है और 0 से 1 हम लॉजिक की तरफ जा रहे हैं, तो होगा क्या कि जब तक जो हमारा वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, ओके, वो थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्शन ही नहीं स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, सो फॉर NMOS क्या होगा, VTN तक तो वो कंडक्ट करना ही स्टार्ट नहीं करेगा। VTN के बाद क्या होगा, ये करंट फ्लो स्टार्ट होगी, ये देख रहे हो, VTN के बाद होगी। सो मैक्सिमम वोल्टेज क्या हुआ, VDD होना चाहिए था, बट वो माइनस VTN उसमें से हो जाएगा। सो मैक्सिमम ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज कहाँ तक होगा, VDD माइनस VTN। ओके, नाउ सेम फॉर योर व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग लॉजिक 0। ओके, मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या जा रही है 0, क्लॉक इज़ एक्टिव मीन्स वैल्यू इज़ VDD, यहाँ पे 0 वोल्ट। ओके, सो जैसे ही ये क्लॉक एक्टिव होगा ये क्या होगा, ऑन, एक तरह से सर्किट ऑन हो जाएगा। सो अब यहाँ पे क्या है, एक तरह से Vin इज इक्वल टू 0 मीन्स ग्राउंडेड है। ओके, ग्राउंडेड मतलब क्या होता है, 0 होता है। सो इस कैपेसिटर को क्या हो जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए, और करंट कहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ से ऐसे एम्पी की तरफ। सो दिस कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स टू 0 जाएगा। ओके, सो मैक्सिमम चार्ज कितना हो रहा था, VDD माइनस VTN, मैक्सिमम ये हो रहा था। सो इट स्टार्ट डिस्चार्जिंग। ओके, सो मैक्सिमम VDD माइनस VTN से टूवर्ड्स टू 0। Okay, so this is the functionality when you are transferring the logic 1 and when you are transferring the logic 0. Okay, so now in next slide I have taken one example. If number of pass transistor connected within a chain. Okay, so 1 2 3 4. Okay, so there are no 4 node voltage V1 V2 V3 and last में Vmax 4. Okay, so you can see here we are giving VDD here. वहाँ पे भी क्या दे रहे थे, क्लॉक दे रहे थे, एक्टिव ही रख रहे थे उसे। एक्टिव मतलब यू आर गिविंग लॉजिक 1 और मैक्स लॉजिक 1 क्या है मीन्स 5 वोल्ट, और VDD की भी वैल्यू क्या होती है 5 वोल्ट।
So you are giving VDD at this gate, and here you are giving VDD at drain. So what will happen for this V1? सेम केस, ये ऑन है, यहाँ पे इनपुट हाई है, तो यहाँ पे जो भी कैपेसिटर लगा होगा वो क्या होगा, स्टार्ट चार्जिंग, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, VDD माइनस VTN. ओके, नाउ यहाँ पे VDD माइनस VTN, अगेन हमने क्या दिया, मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पे क्लॉक इज हाई मीन्स वी आर गिविंग इनपुट इज VDD ओवर एट द गेट. ओके, सो अब क्या होगा, VDD माइनस जो इसका थ्रेशोल्ड होगा VTN 2. सेम एट M3 VDD मैक्सिमम वोल्टेज, जो भी इसका हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो उससे माइनस हो जाएगा. सो मैक्सिमम वैल्यू यू कैन से हियर, जो भी आपका VDD है उससे उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो जाएगा. Okay, so this is the case when you are applying a chain of pass transistor logic. In next slides I have taken another example. Okay, so in this slide what is happening, one pass transistor logic is driving to another pass transistor logic. Okay, so let's see, this is one. ओके, यहाँ का जो आउटपुट है दैट इज़ ड्राइविंग टू दिस पास ट्रांजिस्टर लॉजिक. ओके, सर्किट, और इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए क्या है, एज ए इनपुट काम कर रहा है, तो इसको ड्राइव कर रहा है. ओके, सो फॉर इन दिस केस क्या होगा, इनपुट वोल्टेज VDD. ओके, सो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, VDD मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, VDD माइनस इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है. सो V मैक्स कितना होगा, VDD माइनस VT1N, इसका M1 है, दैट्स वाई आई हैव रिटन VT1N, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द दिस ट्रांजिस्टर. नाउ अब यहाँ पे वोल्टेज यू कैन सी हियर, यू आर गिविंग द इनपुट वोल्टेज VDD माइनस VTN. यहाँ पे जा क्या रहा है, गेट वोल्टेज VDD माइनस VTN. सो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, VDD माइनस VTN माइनस VTN2. इसका भी जो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. इनपुट पे जा ही हमारा VDD माइनस VTN रहा, सो उस इनपुट से क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है सो वो माइनस हो जाएगा. सो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, VDD माइनस VT1N माइनस VTN2. ओके, सो ये ऑलरेडी हमारा था, इसमें से हमने क्या किया, इसका थ्रेशोल्ड कम कर दिया. ओके, नाउ फॉर दिस केस क्या होगा, थर्ड वाले के लिए, अब आपका इनपुट वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम ये वाला है. ओके, ये आप अप्लाई कर रहे हो, सो मैक्सिमम कहाँ से जाएगा, जो अप्लाई कर रहे हो उसमें इस M3 का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो जाएगा. सो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम VDD माइनस VTN1 VTN2 VTN3. इसमें से भी क्या होगा, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसमें से जो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कम हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. इन प्रीवियस केस वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, जो भी इनपुट दे रहे थे वो सब में क्या दे रहे थे, VDD. बट इन दिस केस जो आपका गेट वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज. जैसे जैसे हमारे ट्रांजिस्टर ऐड होते जाएंगे और जो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट आएगा उसमें से वो माइनस होता जाएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज सबका. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पास ट्रांजिस्टर लॉजिक. So thank you students.